Hello students, class 12, subject account, chapter 2, accounts of not for profit concern. Now we will see our next sum from exercise unsolved sum. Page number 121 you will get this sum. Question number 11 from page number 121. Let's see sum. See in this sum there is opening balance sheet and receipt and payment account are given. This is some difference in this sum, that opening balance sheet is given. In our previous sum there are some opening balances are given separately in the adjustment, but in this sum opening balance sheet is given. Okay, see from the following balance sheet and receipts and payment account of New English School Barshi. So here receipt and payment account of one school is given, and we have to prepare income and expenditure account and balance sheet. Income and expenditure account for the year ended 31st March 2020. Let's see. See, balance sheet is given as on 1st April 2019 and receipt and payment account is given for the year ended 31st March 2020. See, 31st March 2020. So it starts from 1st April 2019. So this is our accounting year, 1st April 2019 to 31st March 2020. इसलिए आपको समझ में आ गया होगा बैलेंस शीट कौन से डेट की दी है, 1st अप्रैल 2019, यानी ओपनिंग बैलेंस शीट है वो, राइट। लास्ट ईयर की जो क्लोजिंग बैलेंस शीट वो इस साल की ओपनिंग बैलेंस शीट, और हमें क्या बनाना है, बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2020, दैट इज क्लोजिंग बैलेंस शीट. Now see first mark adjustment number 1, outstanding salary. So mark to salary, see payment side salary is given, mark over there by adjustment number 1. Second one, outstanding tuition fees, tuition fee given receipt side, tuition fee mark over there with adjustment number 2. Third, depreciate library books and furniture, so mark to library books and furniture, that you will get in opening balance sheet also, asset side you can mark over there also, adjustment number 3rd. So now we will start with our sum. So students, remember one thing, whatever opening balances are given in opening balance sheet, that you will write in inner column of closing balance sheet, and after giving the effects in that the balances will come outer column. So let's refer opening balance sheet, यानी बैलेंस शीट जो दी हुई है एज ऑन 1st April 2019. लाइबिलिटी साइड क्या दिया हुआ है, कैपिटल फंड 6,43,000. सो राइट डाउन लाइबिलिटी साइड कैपिटल फंड 6,43,000, राइट इनर कॉलम. आफ्टर दैट सी असेट साइड, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक इज गिवन. ओपनिंग बैलेंसेस चाहिए अपने को, ओपनिंग बैलेंसेस चाहिए क्या, नहीं, अपने को क्या चाहिए, क्लोजिंग बैलेंसेस. तो क्लोजिंग बैलेंसेस ही कहाँ रहेंगे, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नीचे जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा वो हमें लिखना है. उसके बाद असेट में क्या दिया हुआ है, बिल्डिंग 4,50,000, राइट डाउन असेट साइड बिल्डिंग, how much it is, 4,50,000. see all balances, सभी बैलेंसेस जो ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट साइड दिए वो हमें इनर कॉलम में लिखना है. बाद में हम देखेंगे कि उसके ऊपर कुछ एडजस्टमेंट है क्या. अगर एडजस्टमेंट उसमें कुछ भी नहीं है तो ये ओपनिंग बैलेंसेस एज इट इज आउटर कॉलम में आएंगे, और अगर कुछ उसके ऊपर इफेक्ट रहेगा तो वो इफेक्ट देके हम बाद में आउटर कॉलम में लिखेंगे. क्लियर. Now see, after building what is given, furniture 72,000. see हम तुरंत के तुरंत एडजस्टमेंट देख लेते हैं. बिल्डिंग पे देखो, बिल्डिंग पे कहाँ पे एडजस्टमेंट दिया हुआ है क्या, ओके नहीं दिया हुआ है. सी पेमेंट साइड कुछ नया बिल्डिंग यानी परचेज वगैरह किया है क्या, नहीं. एडजस्टमेंट में कुछ डेप्रिसिएशन दिया है उसका, नहीं दिया है. तो बिल्डिंग एज इट इज आउटर कॉलम में आएगा 4,50,000.
4,50,000। आप लोगों ने अगर इनर कॉलम में लिखा है तो बस यहाँ पे डैश करके बाद में आउटर कॉलम में लिखना है, उसके नीचे डैश करके। बिल्डिंग के बाद क्या दिया हुआ है? फर्नीचर 72,000। सो राइट डाउन फर्नीचर 72,000। देयर इज एडजस्टमेंट नंबर 3 जो हम बाद में देखते हैं। उसके बाद क्या है? लाइब्रेरी बुक्स, लीव 3 to 4 लाइन एंड देन राइट लाइब्रेरी बुक्स। लाइब्रेरी बुक्स वर्थ ₹45,000। As there is an adjustment after library book, what is given? Computer laboratory ₹60,000. Is there is any adjustment anywhere? Computer laboratory? No. So you can write directly outer column. Leave again some 3 to 4 line, then write down computer laboratory. How much it is? 60,000. See, as there is no adjustment, all opening balances will go to closing balances, asset side directly. कंप्यूटर लेबोरेटरी के ऊपर कुछ एडजस्टमेंट है क्या? नहीं। कुछ दिया है क्या कि सेल किया है? नहीं दिया, तो वो एज इट इज आउटर कॉलम में आएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट के। नाउ सी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। फर्स्ट क्या दिया हुआ है? रिसिप्ट साइड देखो, 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। यानी ये क्या है? ओपनिंग बैलेंसेस है। किसके? कैश और बैंक बैलेंसेस। ये आपको ऊपर ओपनिंग बैलेंस शीट में भी दिखेगा। देखो असेट साइड दिया हुआ है, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक 6,000 एंड 10,000। तो लास्ट ईयर के जो क्लोजिंग बैलेंसेस थे, कैश का जो बैलेंस है वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कहाँ पे आता है? डेबिट साइड, जैसे हम कैश अकाउंट में लिखते थे। तो ये आएगा क्या इस साल के इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में या बैलेंस शीट में? नहीं आएगा। उसके बाद ट्यूशन फीस। ट्यूशन फीस कितना है? 90,000। वहाँ पे एडजस्टमेंट है, ट्यूशन फी विल कम टू इनकम साइड। रिसिप्ट साइड जो दिया हुआ है ट्यूशन फीस बाय ट्यूशन फीस, ट्यूशन फीस 90,000, राइट इनर कॉलम। Now see adjustment, adjustment number 2, outstanding tuition fees ₹15,000. Outstanding tuition fee is 15,000. So plus outstanding so 90,000 plus 15,000, 1,05,000. Second effect of this outstanding tuition fee. See, this tuition fee is income. So income outstanding means income receivable is asset. So write down asset side outstanding tuition fees, just a minute, outstanding tuition fees, how much it is? 15,000. आउटस्टैंडिंग इनकम रहता है मीन्स इनकम रिसीवेबल, बाद में फ्यूचर में मिलने वाली इनकम है, तो वो क्या है? एसेट। After tuition fee, what is given in receipt column? Term fees ₹3,000. See, there is a no adjustment, so directly outer column you can write by term fees. By term fees ₹3,000, as there is a no adjustment. Then admission fees ₹12,000. By admission fees ₹12,000. Then donation, what is written in bracket?
कैपिटल ₹61,000। सी बहुत बार आपको पहले के कुछ सम में कैसे दिया था, एडजस्टमेंट में लिखा हुआ रहता था दैट डोनेशन इज टू बी कैपिटलाइज या 50% ऑफ डोनेशन इज टू बी कैपिटलाइज। तो जो कैपिटलाइज वाला पार्ट रहता है वो हम क्या करते हैं, कैपिटल फंड में ऐड करते हैं। अभी यहाँ पे एडजस्टमेंट में नहीं दिया है तो ब्रैकेट में ही दे दिया है कि वो डोनेशन को क्या कंसिडर करना है, कैपिटल इनकम। तो हमें क्या करना होगा, वो कैपिटल फंड में ऐड करना होगा। See donation, how much it is given, 61,000. Add donations bracket capitalized after donations interest received ₹2,000. It is a revenue income. So write down here income side, by interest received ₹2,000. Then government grant ₹1,20,000. Just like donation what is clear cut given, that in bracket capital, so we add it in capital fund. Now government grant bracket it is given that revenue, so we have to consider it as revenue income, so it will come in income column. By government grant $1,20,000. सी स्टूडेंट, अगर ऐसा कुछ दिया रहता था दैट 50% ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट इज टू बी कैपिटलाइज, तो हम क्या करते थे, यहाँ पे सिर्फ 60,000 लेते थे और बाकी का 60,000 कैपिटल फंड में ऐड करते थे। पर यहाँ पे फिलहाल ऐसे कुछ दिया नहीं है, तो पूरा का पूरा हमने किस में लिखा, इनकम साइड। आफ्टर दैट सन्ड्री रिसिप्ट्स 11,000, बाय सन्ड्री रिसिप्ट्स 11,000 से अनलेस एंड अनटिल ये जैसे टर्म फी, एडमिशन फी, सन्ड्री रिसिप्ट्स, उसके लिए कुछ दिया नहीं है कि कैपिटलाइज करना है क्या, तो हमें पूरा का पूरा कहाँ लिखना है, वो रेवेन्यू इनकम में यानी इनकम कॉलम में। सो रिसिप्ट साइड इज ओवर, नाउ पेमेंट साइड। फर्स्ट वन, बाय सैलरी ₹90,000। अभी जो भी पेमेंट साइड दिया हुआ है और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट से रिलेटेड है यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो वो हमें कहाँ लिखना है, एक्सपेंडिचर साइड। टू सैलरी 90,000, देयर इज एडजस्टमेंट, सो आई एम राइटिंग इन इनर कॉलम। से एडजस्टमेंट नंबर 1, आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ ₹9,000, so add outstanding 9,000, so outer column 99,000. Second effect of this outstanding, see remember student, यहाँ पे ट्यूशन फीस भी आउटस्टैंडिंग था, पर वो क्या था, इनकम था जो आउटस्टैंडिंग था। इनकम अगर आउटस्टैंडिंग रहता है तो कहाँ पे लिखना है, असेट साइड, क्योंकि इनकम है वो बाद में मिलने वाली है, इनकम रिसीवेबल है। अभी ये क्या है, सैलरी, सैलरी ये क्या है, एक्सपेंडिचर है। सैलरी आउटस्टैंडिंग है, मीन्स ये सैलरी क्या है, पेएबल है, आज नहीं तो कल देना है, अनपेड सैलरी है, इसी साल का है पर वो दिया नहीं है। आउटस्टैंडिंग है तो वो हमने प्लस किया क्योंकि इस साल का है। उसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगा, लाइबिलिटी साइड, क्योंकि ये स्कूल की क्या हो गई है, लाइबिलिटी हो गई है, आज नहीं तो कल देनी है वो सैलरी। सो राइट डाउन लाइबिलिटी साइड, आउटस्टैंडिंग सैलरी, लीव सम लाइन बिलो कैपिटल फंड एंड देन राइट आउटस्टैंडिंग सैलरी, outer column 9,000. Say after salary, library books 14,000. Now this is something new. Say student, in opening balance sheet library books are given worth ₹45,000. तो वो हमने यहाँ पे closing balance sheet में लिख लिया कि लाइब्रेरी बुक्स कितने का था, ओपनिंग में कितने अमाउंट की बुक्स थी,
45,000 की। ओके, अभी ये पेमेंट साइड दिया है बाय क्या दिया हुआ है, लाइब्रेरी बुक्स वर्थ ₹14,000, यानी क्या लाइब्रेरी के लिए नए बुक्स परचेज किए हैं इस साल कितने के, 14,000 के, 14,000 के, इसलिए पेमेंट साइड दिया है। तो वो आपको ये जो ओपनिंग बैलेंस शीट है उसमें लाइब्रेरी बुक्स में ऐड करना है। सी स्टूडेंट, लास्ट सम में भी कुछ इसी तरह से था, पर वहां पे हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया था वर्किंग नोट में, और इस सम में डायरेक्टली डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, ये डिफरेंस है। ऐड न्यू परचेसेस, $14,000, कितना है 14,000। सो टोटल अभी लाइब्रेरी बुक्स कितने हैं कंसर्न के पास, 59,000। यहाँ पे बहुत बार स्टूडेंट गलती करते हैं। सो रिमेंबर स्टूडेंट, लाइब्रेरी बुक्स नए जो परचेज किए हैं 14,000 के, जो पेमेंट साइड दिए हुए हैं, तो वो गलती से भी एक्सपेंडिचर साइड नहीं लिखना है। ऑफकोर्स वो खर्चा है, पैसे गए हैं, पर वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है क्या, नहीं, वो क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ये लाइब्रेरी बुक्स ये स्कूल के लिए क्या है, असेट है, ये रेगुलर सैलरी जैसा एक्सपेंडिचर नहीं है। तो वो बुक्स में परचेस होगा, परचेस क्या होगा, बुक्स में ऐड होगा। अभी उसके ऊपर एडजस्टमेंट है, देखो थर्ड एडजस्टमेंट, डेप्रिशिएट लाइब्रेरी बुक्स बाय ₹9,000। तो ये जो लाइब्रेरी बुक्स है उस पर डेप्रिशिएशन है, तो वो लेस होगा, लेस डेप्रिशिएशन 9,000। सो आउटर कॉलम 50,000। समझ में आया, यानी क्लोजिंग बैलेंस हमें बाहर लेना है, क्लोजिंग बैलेंस लेना है। हमने क्या किया, ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग लाइब्रेरी बुक्स ले लिया 45,000 का, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में से जो न्यू परचेस है पेमेंट साइड दिया हुआ वो प्लस किया, और डेप्रीशिएशन जो एडजस्टमेंट में दिया हुआ है डेप्रीशिएट लाइब्रेरी बुक्स, तो वो हमने माइनस किया। तो इसलिए हमें क्लोजिंग बैलेंस यानी 31 मार्च 2020 को जो स्कूल के पास लाइब्रेरी बुक्स है उसकी वैल्यू कितनी है, तो 50,000। अभी ये डेप्रीशिएशन का सेकेंड इफेक्ट जो बहुत ही कॉमन है, सबको पता है, आपको कहाँ पे आएगा, एक्सपेंडिचर साइड, राइट डाउन हियर टू डेप्रीशिएशन ऑन लाइब्रेरी बुक्स $9,000। नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया हुआ है, लाइब्रेरी बुक्स हो गए, उसके बाद ऑफिस रेंट ₹10,000, राइट डाउन एक्सपेंडिचर साइड टू ऑफिस रेंट, ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ऑफिस रेंट कितना दिया हुआ है, 10,000, सो आउटर कॉलम 10,000। आफ्टर ऑफिस रेंट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 22,000 टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। उसके बाद सन्ड्री एक्सपेंसेस 12,000, जैसे सन्ड्री रिसिप्ट्स है उसी तरह से सन्ड्री एक्सपेंसेस है। उसके बाद इंश्योरेंस 10,200 टू इंश्योरेंस। आफ्टर इंश्योरेंस स्पोर्ट एक्सपेंसेस 8,000। से कोई भी आइटम मिस नहीं करना है, हर एक आइटम को मार्क्स अलॉट किए रहते हैं, और ऑफकोर्स आपका सम भी टैली नहीं होगा कोई भी आइटम रह गया तो। आफ्टर स्पोर्ट एक्सपेंसेस एनुअल गैदरिंग एक्सपेंसेस, सी ये सभी एक्सपेंसेस रेगुलर है स्कूल के लिए, टू एनुअल गैदरिंग एक्सपेंसेस 9,000। उसके बाद फर्नीचर 50,000 से, जैसे लाइब्रेरी बुक्स का हमने सब इफेक्ट दिया बस उसी तरह से हमें फर्नीचर का देना है। फर्नीचर का हमने ओपनिंग बैलेंस शीट से अमाउंट लिया, कितना था 70,000। ओके, अभी पेमेंट साइड क्या दिया हुआ है, बाय फर्नीचर ₹50,000।
यानी नया फर्नीचर परचेस किया है स्कूल ने इस साल, ऐड फर्नीचर या फिर ऐड न्यू परचेसेस। कितने के फर्नीचर है? तो 50,000 का। ओके, तो ये न्यू फर्नीचर परचेस किया है, यानी अभी फर्म स्कूल के पास कितने के फर्नीचर है? 1,22,000 के। अभी एडजस्टमेंट देखो, एडजस्टमेंट नंबर 3, डेप्रीशिएट फर्नीचर बाय ₹10,000, सो लेस depreciation, less depreciation 10,000, so outer column 1,12,000। ओके, जैसे हमने लाइब्रेरी बुक्स का किया बस उसी तरह से फर्नीचर का जो ओपनिंग बैलेंस शीट में बैलेंस था वो लिखा, प्लस परचेसेस यानी जो पेमेंट साइड दिया हुआ है, न्यू फर्नीचर परचेस किया स्कूल ने, और एडजस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन लिया 10,000। सो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर एज ऑन 31 मार्च 2020 कितना आ गया? 1,12,000। अभी ये फर्नीचर का डेप्रिसिएशन कहाँ पे आएगा? एक्सपेंडिचर साइड, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। कितना है डेप्रिसिएशन? हमने जस्ट लिखा 10,000। ओके, तो ये डेप्रिसिएशन हो गया। उसके बाद फर्नीचर के बाद क्या दिया हुआ है? रिपेयर्स 15,000, 15। सो राइट एक्सपेंडिचर साइड टू रिपेयर्स 15,000। बाय बैलेंस कैरिड डाउन कैश एंड बैंक बैलेंस, ये क्या हो गया? क्लोजिंग बैलेंस हो गया, किसके? कैश और बैंक के। तो वो असेट साइड में लिखो कैश इन हैंड and cash at bank, कैश इन हैंड कितना है? 4,800 एंड कैश एट बैंक 70,000। सो स्टूडेंट्स, हर एक समय मैं आपको बोल रही हूँ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो क्लोजिंग बैलेंस रहेगा नीचे रहेगा बाय बैलेंस, कैश का, बैंक का, वही आएगा असेट साइड। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट आया है, डेबिट साइड बैलेंस आया, तो वो लाइबिलिटी साइड जाएगा। एडजस्टमेंट हमारी हो गई है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी हो गया है। क्लियर? सो नाउ वी विल क्लोज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। So close income and expenditure account. See total 2,53,000. Write down both side. 2,53,000 of income and expenditure account, balance to surplus, that is excess of income over expenditure. Surplus is 48,800. ओके, तो ये हो गया। अभी ये सरप्लस ऐड होगा कैपिटल फंड में, ऐड सरप्लस, कितना आया है? 48,800। सो टोटल आउटर कॉलम 7,52,800। ओके, डोनेशन जो कैपिटलाइज हुआ था वो हमने प्लस किया, सरप्लस ऐड किया। नाउ क्लोज बैलेंस शीट। बोथ साइड मस्ट टैली, जैसे आप फाइनल अकाउंट में करते हो बस उसी तरह से करना है आपको।
total comes 7,61,800. ओके, तो ये हो गया बैलेंस शीट से। हर एक सम में कुछ ना कुछ न्यू एडजस्टमेंट है, राइट। यहाँ पे कैसे दिया होता, ओपनिंग बैलेंस शीट दिया हुआ था। लास्ट सम में हमने क्या किया था, वर्किंग नोट में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया था। यहाँ पे डेप्रिसिएशन डायरेक्टली दिया हुआ है। तो हमने अभी आज क्या क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट कर लिए। अभी एक्सरसाइज में और 3 क्वेश्चन है, वो भी मैं जल्दी से कंप्लीट कर लूँगी और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ गुड डे।